Good morning students. Today also we will see class 9 chemistry chapter number 3 atoms and molecules. In our previous lectures we have learned about the atomic mass as well relative atomic mass we have learned, and in our previous lectures we have seen the lot of information about the atoms, but here now we will learn about the molecule. What is molecule? In my first lecture of this chapter I have introduced about the molecule, but we will study about molecule in detail in this lecture. Okay, so what is mean by molecule? What do you think about that? So molecule means a group of two or more atoms. We know very well what is atom. Atom is the tiniest particle of any matter, and here molecule means group of two or more atom. मतलब दो और ज्यादा एटम के कंबाइन होने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है. ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स that are chemically bonded together, but that are chemically bonded together or tightly held together by attractive forces. Okay, so this is the definition of molecule. What is that? It is a group of two or more atoms that are chemically bonded or tightly held together by attractive force. तो वो एटम जब कंबाइन होते हैं तो उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होना बहुत जरूरी है. तो क्या होता है, मॉलिक्यूल जब बनता है तो एटम जब कंबाइन होते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और वो कैसे होते हैं? केमिकली बॉन्डेड होते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल. Group of two or more atoms that are chemically bonded together or tightly held together by attractive forces. Okay, so here we will see two types of molecules. Yes, so first type of molecule is the molecule having same type of atom. Molecule having same type of atoms. We have discussed very briefly in our last lecture also. Okay, now we are seeing in detail. So what is the first type of molecule? This molecule is having same types of atom, means same elements, atoms, these are combining here. Means these atoms are having of same element, and here in second type here that atoms are combining, but that atoms are belonging to different element. यहाँ पर एक ही एलिमेंट के दो एटम है, H और H कंबाइन होके क्या बना है? H2 बना है. मतलब ये सेम ही एलिमेंट है. हाइड्रोजन इज द एलिमेंट इन द फर्स्ट केस, मीन्स हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम इन दैट मॉलिक्यूल. But in second type, H2 molecule we are seeing, it is a molecule of compound. Why? Because different type of atoms is having, means atoms of different element it is having. Atom of different element, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एक अलग टाइप का एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग टाइप का एलिमेंट है. दोनों एलिमेंट के एटम केमिकली बॉन्डिंग करके क्या बनता है? यहाँ पर वाटर बनता है. अंडरस्टूड? यहाँ पर केमिकली बॉन्ड होता है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, यहाँ पर चेंज होती है, और अभी ये किसकी प्रॉपर्टी बन जाती है? वाटर की प्रॉपर्टी बन जाती है. ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन अभी ये जब केमिकली बॉन्डिंग होता है, इनमें केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो क्या बनता है? वाटर. Water will form here, and its chemical property totally changed here. Totally changed, and here we can say it is a molecule of compound because it's having atoms of different element. And here in first case the atoms are having of same element. Okay, so this is
these are two types of molecules. Okay, so the second definition, it is very important concept, smallest particle of an element or compound. What is molecule? The second definition we will see here, smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence, capable of an independent existence and show all the properties of that substance. क्या है यहाँ पर? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये तो हमको पता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब ये एलिमेंट का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टाइनीएस्ट पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, कि इट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. यहां पर जो एटम है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता उसका तो ये मॉलिक्यूल बनाता ही क्यों? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यदि उसका पॉसिबल रहता हाइड्रोजन का तो ये मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं. तो इसको अपने ही एक एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाना पड़ा है. यहाँ पर हाइड्रोजन, आर यू सीइंग हियर, हाइड्रोजन एटम इज कंबाइंड विद इटसेल्फ with the same hydrogen atom, say atom of same element, मतलब एक हाइड्रोजन का एटम है, वही एलिमेंट का दूसरा हाइड्रोजन का ही एटम है और यहाँ कंबाइन होके क्या बना, अभी मॉलिक्यूल बना. क्यों बनाना पड़ा उसको ऐसा? क्योंकि एटम ऑफ हाइड्रोजन हियर इट इज नॉट स्टेबल. ये अकेला कभी भी स्टेबल नहीं होता है, बहुत रेस्टलेस होता है, बहुत एक्टिव होता है. तो ये अकेला एग्जिस्ट नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव व्हेन इट इज अलोन, सो दैट इट कैन नॉट पॉसिबल दैट इट इज एग्जिस्ट अलोन. ओके, ये अकेला एग्जिस्ट होगा ऐसी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. सो दैट इट विल कंबाइन विद अनदर हाइड्रोजन एटम टू गिव H2 मॉलिक्यूल. समझ में आया? तो अभी उसने एक हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन किया है तो अभी जो ये मॉलिक्यूल बना है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है. अभी ये पॉसिबल है. जब मॉलिक्यूल बना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला के तो क्या बना, भी है हाइड्रोजन गैस बना और ये बहुत स्टेबल होता है. ये स्टेबल स्ट्रक्चर है बट इंडिपेंडेंट हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल. सो व्हाट इज द कंडीशन? स्मॉलेस्ट particle of an element or compound that is capable of an independent existence. अभी इसका independent existence यहाँ पर molecule के फॉर्म में होता है. Understood? And the next condition, and show all the properties of that substance. लेकिन क्या होता है, उसके जो सब्सटेंस बनाया अभी यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बना है, या हाइड्रोजन एक सब्सटेंस बना दी, तो ये सब्सटेंस के अपने खुद के प्रॉपर्टी ये शो करेगा. अभी ये मॉलिक्यूल आपको दूसरे एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा. सेकंड प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन एटम की भी प्रॉपर्टी का क्या है यहाँ पर, एटम इज अनस्टेबल बट व्हेन इट कंबाइन विद अनदर हाइड्रोजन एटम इट विल बिकम स्टेबल मॉलिक्यूल एंड इट विल शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये अभी हाइड्रोजन गैस बना है, ये पहले हाइड्रोजन एटम था, ये अभी एलिमेंट था, तो ये एलिमेंट का दूसरा एक एटम कंबाइन करके हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल बन गया. तो ये अभी इसकी ही प्रॉपर्टी शो करेगा. अंडरस्टूड? तो दूसरा एग्जांपल लेंगे यहाँ पर हम, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स H2O. तो यहां पर क्या हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल. ये हाइड्रोजन का ये जो भी मॉलिक्यूल बना, ये दो अलग अलग एटम कंबाइन करके बने हैं यहाँ पर. यस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, बट नाउ हियर बाय कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, वाटर इज फॉर्म. वाटर फॉर्म हुआ है तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये वाटर की ही प्रॉपर्टी शो करेगा, ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा. अभी यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है और वाटर बना है, वाटर का मॉलिक्यूल बना है, तो ये
लिक्विड वाटर की एक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अभी गैस की प्रॉपर्टी शो करेगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, वो हम इनहेल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी पानी नाक में डाल सकते हैं क्या, डायरेक्टली नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। जैसे हाइड्रोजन की एक अपनी प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, खुद बर्न होता है, खुद क्या होता है, बर्न होता है। तो यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बर्न होता है, वाटर बर्न होता है क्या, वाटर नहीं बर्न होता है, कभी भी वाटर बर्न नहीं होता है, उल्टा वो आग को बुझाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज हो गई है। ऑक्सीजन also helps for help in burning process, but water is a fire, क्या होता है, ये फायर को क्या करता है, extinguish करता है। yes, so its property change here, okay, so that we can say the second condition also fulfilled here also, okay. What is that second condition? First condition is the compound that is capable of an independent existence. उसका independent existence क्या होता है, कैपेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है अभी ये मॉलिक्यूल का, वाटर का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का नहीं, वाटर मॉलिक्यूल का अपना इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस यहाँ पर पॉसिबल हुआ है। सेकंड है शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अभी ये किसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, वाटर की ही प्रॉपर्टी दिखाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। अरे ये जो वाटर का कंटेनर है, तो उसमें जो अभी पार्टिकल है उसका वाटर का ही H2O, H2O, H2O ऐसे कंबाइन करके यहाँ पर जो बने हैं, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा इसका, अभी H2O ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ना कि H और O2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा क्या, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्मॉलेस्ट पार्टिकल H2O ही होगा। यदि हम मॉलिक्यूल को भी डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पर, वाटर। वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, जो कि वाटर की ही प्रॉपर्टी शो करेगा, वो है H2O, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वाटर के होंगे क्या, नहीं होंगे। वाटर का ही अपना खुद का प्रॉपर्टी दिखाने वाला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो H2O यहाँ पर होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूल एंड वी हैव सीन हियर टू definitions and the concepts are very important to understand the molecule. Okay, so next we will see molecule of element. Molecule of element. So what is mean by molecule of element and what is mean by molecule of compound that we have discussed before in brief, but now we will see in detail. Molecule of element. So molecule of element that is, यहां पर हमने एग्जांपल देखा अभी, जहां पर क्या है, एक ही एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होके, एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करके और केमिकली बॉन्डिंग करके जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट? Molecule having same type of atom. This is the first definition. Molecule having same type of atoms. Second definition, atoms of same element joined together to give molecule of element. It is the standard definition of molecule of element. It is very important definition. Now what is that? Atoms of same element, atoms of same element joined together to give
molecule of element. This is the standard definition of molecule of element. Okay. So what is the example? Example, just now we have seen hydrogen and hydrogen combined to give hydrogen gas. These are the atoms of same element. That's why we can say this is the molecule of element. Another example, oxygen plus oxygen, it gives oxygen molecule. Yes. So it is having same type of atom. Again, we can say argon, neon, argon, krypton, xenon and radon. These are ideal gases. These are also having molecule, but these molecules are having only single atom. These molecules are having only single atom. Means neon molecule only having one atom. वन सिंगल एटम, एक सिंगल एटम से ही ये मॉलिक्यूल बनता है, इसके दो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या है, इसे स्पेशली स्टडी किया गया है, स्पेशली इसका एक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में और इसे कहा जाता है आइडियल गैसेस और इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब होता है ये रिएक्टिव नहीं होते, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये एकदम आइसोलेटेड रहते हैं और किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्ट गैसेस। एंड दीज आर आइडियल गैसेस बिकॉज their configuration, their electronic configuration of atom is very ideal, having minimum capacity or maximum capacity fulfill of its electrons in its outermost shell, that we will see later. Okay, so standard electronic configuration these are having, that's why these are called ideal gases। अब इसके ही stable configuration को हम compare करके बाकी के ionic कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम ये देखने वाले। ओके, सो दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड दीज आर हैविंग टू एटम, कितने हैं, 1 + 1 एंड 2 एटम इट इज हैविंग। H2 मतलब 2 एटम से बना है ये मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का भी है, 2 एटम से बना है, तो ये हो गए मोनो एटॉमिक, ये हो गए डायटॉमिक। अभी ऑक्सीजन और एक फॉर्म में मिलता है O plus O, it gives ozone gas। O3 मतलब ओजोन गैस। तो ये ओजोन गैस कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम से बना है, 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके ये ओजोन गैस बना है। तो ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक। कितना हो गया, ट्राई एटॉमिक। सो हाउ मेनी एटम्स आर हैविंग द मॉलिक्यूल, it is called as atomicity of the molecule। it is the special topic is given in your textbook also, atomicity of the molecule, we will see in detail। yes, atomicity of molecule। So what is the definition? What is the definition of atomicity of molecule? We will see. The definition is number of atoms constituting, it is given in your textbook also, constituting a molecule is known as its atomicity। okay, and the number of atom included in the molecule is its atomicity, that is its meaning। the number of
atoms included in molecule is its atomicity. Is its atomicity. Okay. So what is the atomicity of molecule here? The number of atoms included in molecule is its atomicity. अभी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने हमने हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने एटम्स इंक्लूड है? 2 एटम इंक्लूड है, तो ये क्या हो गया? डायटोमिक. देखो अभी ऑक्सीजन भी सेम ही है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये भी डायटोमिक. अगेन वी हैव सीन ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, again one oxygen means 3 oxygen atoms are here and it gives ozone molecule. It is triatomic. And here at downside we have seen the molecules, one special type of molecules we have seen here, that is monoatomic. मीन्स यहाँ पर कितने एटम्स इंक्लूड है? ओनली एक ही एटम इंक्लूड है. यहाँ पर 2 एटम इंक्लूड है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3 एटम इंक्लूड है. द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. कंस्टिट्यूटिंग इट्स मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम ने कंस्टिट्यूट किया है मॉलिक्यूल को, उसे क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं. अंडरस्टूड? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एज वेल. ओके. यहाँ पर अनदर एग्जांपल वी विल सी हियर. Phosphorus is tetraatomic. P plus P plus P plus P, 4 एटम मिला के क्या बनता है? P4. That's why it is called tetraatomic molecule. Tetraatomic molecule. Again sulfur is having 6 atoms. That's why it is called more than 3 or 4. It is now known as polyatomic. अभी कितना देंगे? पेंटा, टेट्रा तक तो 4 तक तो आ जाए, 4 के बाद जो भी आएंगे उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक. पॉली मतलब बहुत सारे. अभी 4 से जितने ज्यादा है उसको पॉली मतलब मेनी. पॉलीएटॉमिक मोर देन 4, दिस इज पॉलीएटॉमिक. ओके. सो sulfur is denoted as and it is having 6 atoms included in the molecule, so that it is polyatomic molecule. Okay. So this chart is given in your textbook also, atomicity of same elements, page number 36. So this chart you have to learn in this type of element. All these are non-metals. This we have seen this example which we have seen here. These are all non-metals. The chart of non-metals here is given. Here is given argon, helium, oxygen, hydrogen, nitrogen, chlorine. Chlorine also diatomic. Chlorine, how we can write chlorine? We write chlorine Cl2. Cl2 means diatomic. Yes. Nitrogen also diatomic, because nitrogen also we are writing N2. That's why it is diatomic. Only ozone is triatomic here we have seen, and phosphorus is tetraatomic, then sulfur is polyatomic. This table you have to learn very well. Okay. And the very important point before that table, it is given metals, about the metals and some other elements such as कार्बन नॉन मेटल है, फिर भी वो भी एक एक्सेप्शन है. और मेटल डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर, उसका कोई भी एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है. कोई भी मेटल के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है. मेटल के जो एटम्स होते हैं वो बहुत एक से ज्यादा एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं. ऐसे डेफिनाइट नंबर ऑफ एटम उसमें होते नहीं. जैसे ऑक्सीजन में 2 होते हैं, या तो फिर ओजोन में 3 होते हैं. ऑक्सीजन बोला तो 2 ही एटम हो गए, ओजोन बोला तो 3 ही एटम कंबाइन होंगे. हाइड्रोजन 2 ही एटम कंबाइन हो गए. क्लोरीन गैस 2 एटम क्लोरीन के कंबाइन हो गए. और H2O में H के 2 और ऑक्सीजन के एक, ऐसे 3 ही एटम हमको मिलेंगे.
लेकिन मेटल का और कार्बन, ये जो एक नॉन मेटल है और मेटल कोई भी, इसका ऐसे कोई भी सर्टन नंबर ऑफ एटम नहीं होता है, उसकी एटॉमिसिटी सर्टन नहीं होती। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इंक्लूडेड इन मॉलिक्यूल। उसकी एटॉमिसिटी मेटल्स एंड नॉन मेटल such as carbon atom having indefinite structure of atom। उसके एक ही दो ही ऐसे एटम कंबाइन नहीं हो गए, एक से ज्यादा भी एटम कंबाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा है, हम इन नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड वी विल सी हाउ कार्बन कैन मेक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ओके। एंड मेटल ऑल्सो कैन मेक molecule of more than 1 2 3 4, how many atoms there are present is uncertain. These number of atoms are uncertain in metals. That's why this molecule we can't say it's atomic, we can't predict, okay. It is unpredictable atomicity, it is having unpredictable atomicity, okay. So this is about the molecule, then molecule of element, then we have seen atomicity of molecule, okay. In H2O, how many total atom? 2 of hydrogen and 1 of oxygen. Then it's in this compound, molecule of compound having 3 total atoms and its atomicity is 3, okay. Like that atomicity we can take out. So this is about our today's topic. You have to learn this topic, you have to read this topic very well from your textbook also, NCERT textbook also. In our next topic we will see molecule of compound. Yes.